Good morning, grade 4. Welcome in your GK tutorial. I hope you all are doing fine and great. So today we will start with a new chapter, chapter number 25, Proverbs. So proverb means saying a short message or a statement of a wisdom, means a good, of a thank you, or a advice. We can say a wisdom or advice, saying a small quote or a the statements. So that are known as proverbs, which we use in our day-to-day life, or sometimes the elders say us like we should not do like this, or words, or they give us a advice. So those are called proverbs. So now that passes from generation to generation. So now let's learn some of the proverbs from a chapter number 25. So I will begin with the presentation with all of you. So here's the presentation, grade 4 of chapter number 25, Proverbs. So as I said, proverbs and saying our short messages or statements of a wisdom or advice are called a proverbs, which transmitted from or which passes from generation to generation. So they keep passing from generation to generation. So now let's begin with it. So here the list of some of the proverbs. So first is all good things must come to an end, meaning जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो एक पॉइंट पे जाके एक एंड पे आ जाती हैं. So it means nothing lasts forever. कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती. Everything has to be end at a one point. So the all good thing must come to an end. This will mean nothing lasts forever. Okay, now let's move to the second proverb. Action speaks louder than words. So might be you have listened this proverb in your day-to-day life from your elders that action speaks louder than words. आपके जो actions हैं वो ज़्यादा बोलते हैं बजाय कि आप जो लफ्जों के राही आप किसी को बताना चाहें या समझाना चाहें. So that means what a person actually does is more important than what they say will do. So जो इंसान जो कर रहा है वो ज्यादा important है उसके बजाय कि उसने हमें क्या बोलना है. So इस लाइन का मतलब क्या है? What a person actually does is more important than what they will do. So हमें ये नहीं देखना चाहिए वो फ्यूचर में ऐसे क्या करेगा और क्या नहीं करेगा. जो वो राइट नाउ बच्चे प्रेजेंट में कर रहा है that is more important. We should always see the the positive thing or a positive point of that person. Now let's move to the next proverb. So the next proverb here is all good things come to those who wait. अच्छी चीजें उनके पास ही आती हैं जो वेट करते हैं, जिनमें पेशेंस है. हम कहते हैं ना पेशेंस जिसमें भी है उसे हर चीज मिलती है. सब्र का फल मीठा होता है. आपने ये शायद ये प्रवर्ब सुना भी होगा. हिंदी में हम कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है. सो ऑल गुड थिंग्स कम टू दोस हु वेट, जो सब्र करते हैं, वेट करते हैं. सो a patient brings reward. Patience, sabr. Patience brings reward. If you have a patience, अगर आप में सब्र है तो जरूर आपको अच्छी चीजें मिलेंगी और उसका फल भी मिलेगा. I hope this proverb is clear to all of you. Now we have a next proverb. Let's move towards. So number 4. All that glitters is not gold. हर चमकती चीज सोना नहीं होती. आपने ये भी प्रवर्ब सुना होगा. ये बहुत कॉमन है. मम्मा पापा भी कई बार यूज करते हैं या कई बार दादू दादी यूज करते हैं घर पे कि हर जो चमकती चीज है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोना है. सो आंसर ऑफ दिस appearances can be deceptive. So means कि हमें हमेशा appearances पे नहीं जाना चाहिए. अगर वो चमक रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सोना है. अगर कोई बहुत ही अच्छा well dressed हुआ है that doesn't mean that person is very nice or very down to earth person. अगर किसने बहुत अच्छे कपड़े डाले हैं तो ये उसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा भी अच्छा होगा. Sometimes the person is not good और sometimes जो नॉर्मल एक आम आदमी भी होता है जो बहुत सिंपल और सादा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है. So we should not always guess anyone according to their appearances. That means now we have the next proverb here on the screen. An idle brain is a devil's workshop.
खाली दिमाग शैतान का घर है। ये भी आपने सुना होगा मम्मा से कि खाली दिमाग शैतान का घर है। सो आंसर ऑफ दिस, व्हेन यू वर्क यू अवॉइड टेम्पटेशन। सो हमें हमेशा अपने आप को क्या करना चाहिए, बिजी रखना चाहिए। अगर हम फ्री बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई शैतानी जरूर चलती रहेगी। और ये आप लोगों के लिए भी एडवाइस है, नेवर सिट आइडल। आइडल मीन्स फ्री नहीं बैठते। डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, ऑलवेज यूज योर टाइम very carefully and very responsibly, because the time never comes back. जो बच्चे एक बार निकल जाता है हाथ से, वो कभी भी वापस नहीं आता। So हमें अपने वक्त को बहुत ही ध्यान से हमें उसको यूज करना चाहिए, और हमें कुछ ना कुछ हमेशा करना चाहिए। अगर आपको खेलना पसंद है, अच्छा कुछ प्ले करो। अगर आपको कुछ बनाना पसंद है, यू कैन ड्रॉ इट, आइदर यू कैन बेक इट, you can do anything whatever you love to do, but don't sit idle, don't sit free. Okay, so when you work you avoid temptations. Now the next proverb is here, any time means no time. So any time means no time. हम कहते हैं ना, नहीं आज कर लेंगे ये काम, मैम नहीं आज नहीं किया, हम कल कर लेंगे। So any time means no time. If the date of event remains vague, it will never happen. So it means if the date of event, अगर किसी इवेंट को हमने प्लान किया है, अगर हम उसको उस टाइम नहीं करते, तो that will never happen. As I told you, the time never come back. The time which passes, that will never come back. जो टाइम बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। सो हमें हमेशा टाइम को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए in a resourceful way. Okay, now the next proverb on the screen here is, this is so very famous, a friend in need, a friend is indeed. जो दोस्त आपको जरूरत के वक्त काम आता है, वो ही आपका सच्चा दोस्त है। सो ये आप सबने सुना होगा, आप सबने कहा, कईयों ने कहा भी होगा अपने फ्रेंड्स को, a friend in need is friend in deed. So someone who helps you when you are in trouble is your real friend. So जब कभी भी आप किसी भी ट्रबल में होते हो, मुसीबत में होते हो, और जो कोई इंसान आपको आपकी मुसीबत के टाइम आपकी हेल्प करता है, that person is your real friend or your real good wisher. आप कह सकते हैं कि वो इंसान आपको दिल से प्यार करता है, वो इंसान आपके साथ बहुत ही सच्चा है। So someone who helps you when you are in a trouble is your real friend. I hope this is clear to you all. Now let's move to the next proverb. So the next proverb here is, a flower blooms more than once. जो एक फूल है वो एक से ज्यादा टाइम क्या करता है, ब्लूम करता है, खिलता है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है, If you miss an occasion, you can alive it another time. अगर कोई occasion आपने मिस कर दी है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी है, देन डोंट फील डिसअपॉइंटेड, डोंट गेट डिस्करेज। आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपको फिर से एक बार मौका मिल सकता है। ठीक है, सो इफ यू मिस एनी ओकेजन यू कैन अलाइव इट अनदर टाइम। आप उसको जब दोबारा कभी भी आपको मौका मिले, देन जरूर उस ओकेजन को आप ज्वाइन करें या उस अपॉर्चुनिटी को पाएं और उसका यूज करें। ठीक है, सो डोंट वरी, कभी भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है, सो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोवर्ब, all's well that ends well. अगर सब अच्छा होगा तो अंत भी अच्छा होगा। सो all well that ends well. So there is a solution to everything, even though there are the doubts. सर हर चीज का सल्यूशन होता है, हर चीज का एक कोई ना कोई आपको हल मिलता है, चाहे आपको कई बार डाउट भी होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई रास्ता नहीं है। अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, अगर वो बंद है, तो आपको दूसरा रास्ता भी मिलेगा अगर आप कोशिश करेंगे। सो हमें कभी भी कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए। सो देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग, इवन दो देयर आर द डाउट्स। अगर आपको कोई शक भी है, फिर भी हमें उम्मीद हमारी नहीं छोड़नी चाहिए। ओके, नाउ द लास्ट proverb here on the screen is, advisors run no risk. So the advisor, जो सलाहकार होते हैं, वो रिस्क लेने से नहीं डरते। सो
It is easier to give advice than to act. So you know it is very easy. किसी को सलाह देना बहुत ही आसान काम है, पर you know उसको एक्ट करना, जब हमें उस एडवाइस को अपने पे इंप्लीमेंट करना पड़ता है, देन वी कम टू। सो यू नो हियर द वर्ड कम्स एम्पैथी। सो हमें एम्पैथी आनी चाहिए, हमें हमेशा अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के देखना, सोचना चाहिए। सो इट इज ऑलवेज इजी टू यू नो गिव एडवाइस देन टू एक्ट। इसका मतलब ये कि सलाह देना बहुत ही आसान है, पर उसी सलाह को अपने पे जब हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है तो तब हमें पता लगता है कि ये चीजें इतनी आसान नहीं है। सो वी शुड लर्न the empathy, you know, putting yourself in another one's shoes. So we should always think according to the other one's perspective also. हमें दूसरे के नजरिए की तरह भी सोचना चाहिए, so that अगर हम किसी को सलाह या कोई एडवाइस दे रहे हैं, हम उसे देने से पहले सोचें कि अगर यही एडवाइस हमें दी जाएगी, क्या हम ऐसे कर पाएंगे? क्योंकि एडवाइस देना तो बहुत ही आसान है, पर उस एडवाइस को अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, सो ऑलवेज थिंक बिफोर यू गिविंग एनी एडवाइस टू एनीवन। सो थैंक यू, ग्रेट 4। So this is all about your chapter number 25, Proverbs. Now, I want to request you all, do complete your chapter in your book and do read your Proverbs carefully, and we will meet in the next tutorial. Stay home, stay safe. Thank you.